Okay, see, last lecture, what we have seen the current, we have started with the current development in banking sector, and in that one, we have seen the globalization in banking. Okay, like because of globalization, what kind of a pressure the banking sector is been facing, then how does the Narsimham Committee 1 and 2, they actually put their recommendation on the growth and development of the banking sector. That part we have seen under the globalization in banking. Now the second one, again the current development के बारे में ही we are talking, and here we are talking technology infusion and upgradation challenges. Okay, so what is in that point we'll see. Keeping pace with technology upgradation is the most important challenge banks are facing today. Yes, yes, as we all know, like we are preferring to do the online banking instead of going and visiting the branch and wasting our time. Okay, so we always give preference to the online and the technology only. Through that, if it is possible to do the banking, then it is good for us also. See, information networks now relay more and more content and the knowledge. Basically, everything is becoming connected. Information is flowing through networks with greater intensity and changing everything. Markets are disappearing, becoming networks of information with the customer at the heart. Power has shifted to the customer who behave as active element of a network and not passive target of a market. This has created a greater segmentation of customers and a blurring of competition between traditional and non-traditional players. There has been a secular shift in technology, mobility, analytics, and profusion of media. Nowadays, what is the thing here? As we are using the technology like mobile is there with each and everyone, so easily information can be passed from one place to another place, or we can say from one person to another person. So like everybody are now connected one. So here the challenges in front of the bank is what, like how to make their customer very active, like previously what we used to do, we used to fill the form, and whatever activity of transferring the money, giving the cash and everything were used to done by the like banking employees only. लेकिन अभी कैसा होता है, like no need to write the application and everything, we are just using the debit card, credit card, or we are just using the internet banking, mobile banking, and through that one we are doing our own transaction. तो बैंकिंग के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लोग ने मशीन को, टेक्नोलॉजी को वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, एंड उसके अकॉर्डिंग वी आर एबल टू डू अवर बैंकिंग एक्टिविटी. So now the customers has become very active, and it is काइंड ऑफ अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द बैंक कि कैसे कस्टमर को हमेशा हर पॉइंट पे सेटिस्फाई रखना है, सो दैट दे विल गोइंग टू कंटिन्यू विद देयर अकाउंट. बिकॉज अभी कैसे इवन अकाउंट ओपनिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन ऑल्सो. सो अगर हमें कैंसिल भी करना है तो इमीडिएटली कैंसिल करके वी कैन ओपन द अकाउंट ऑनलाइन. तो वो बहुत ईजिली हो सकता है इफ एनी ऑफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ आवर सर्विसेज. So therefore, banking sector has to be very much upgraded in like or like when we are talking about the technology. तो एग्जैक्टली क्या एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, दैट वी विल सी. ये जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, बट वंस अगेन दे हैव गिवन द पॉइंट हियर. That is ATM machine, automated teller machine card, credit card, debit card, internet banking is there, tele banking is there, corporate cash management, Swift banking, very small aperture terminals. See here, what is that point saying here? Very small aperture terminals. It means we are talking about the networking. मतलब डेटा हैंडलिंग, मतलब डेटा कैसे इजीली हम लोग यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं. मतलब we can say the internet connection वगैरह, तो that part is also we can consider here. Then the mobile banking, home banking, demand draft, safe deposit wall, these are all kind of a advancement of technology which has been given by a majority of the we cannot say only the commercial banks are providing, even the corporate banking have started giving this kind of services also. But not all the corporate banking are giving, बट हाँ स्टार्ट थोड़े वो जो लोग कर सकते हैं उन्होंने तो स्टार्ट किया हुआ है. Many Indian banks are positioning themselves to seize the new opportunity nationally and internationally. Several public sector banks are opening up new branches in foreign countries. Services and products like anywhere banking, mobile banking, e-banking, etc. have become the buzzword of the day, and the banks are trying to cope with the competition by offering innovative and attractively packaged technology-based services to their customer. So what they're saying here, nowadays it has become so convenient for the customer, like they are asking for this kind of a mobile banking, e-banking services only, anywhere banking. मतलब जैसे पेटीएम रहने दो कि कोई ज़रूरत नहीं तुम लोग को कैश हैंडल करने के लिए, वॉट एवर अ स्मॉल अमाउंट
of if you are purchasing the small product with a small amount of money also, so उसके लिए भी नो नीड टू प्रिफर द कैश. इवन आप लोग एक वड़ा पाव भी खरीदते हो तो वड़ा पाव का भी चार्जेस आप लोग पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो करके. So that kind of a people have become so much habitual of what we can say ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज. तो वो सब उनको हमेशा देना है, कस्टमर को अलग अलग तरीके से कुछ नया नया सर्विसेज प्रोवाइड करना है. सो दैट इज द काइंड ऑफ अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर नाउ. सो नाउ फर्स्ट वी विल गोइंग टू से द पेटीएम लॉन्चेस पेमेंट बैंक ईयर. ठीक है, आई होप सो, आई एम गेसिंग कि आप लोगों के पास भी पेटीएम रहेगा, है या नहीं है आपके पास. पेटीएम आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोग यूज़ करते हो या नहीं यूज़ करते हो. यस, anybody has ever used the Paytm? No, ma'am. I'm using Google No, Pay. ma'am. अच्छा, नहीं यूज Yes. करते. ओके ओके, ठीक है. तो तुम लोग इसे छोटे मोटे खर्चे के लिए क्या यूज करते हो फिर, कौन सा ऑनलाइन ऐप तुम आप लोग यूज करते हो बैंकिंग के लिए. Ma'am, Google Pay. अच्छा, गूगल पे होता है. ओके ओके ओके, ठीक है. रेनू, रेनू वांट टू से समथिंग. यस रेनू. Okay, Renu don't want to say something. Okay, chalo. See, Paytm launches payment bank. Paytm has rolled out its payment bank operation by launching its first physical branch in Noida. With this launch, there are three payment bank operational in the country. The other two being Airtel Payment Bank Limited and India Post Payment Bank Limited. The Paytm Payment Bank will be the first bank in the country to offer cash back on deposit. The Reserve Bank of India had given in principle approval to Paytm Payment Bank Limited, an entity majority owned by 197 Communication earlier this year. In 2015, RBI had awarded in principle approval to Vijay Shekhar Sharma to set up a payment bank along with 10 other with objective of deepening financial inclusion. The Paytm Payment Banks aims to plan to roll out operation in 31 branches and 3,000 customer service point in the first year. As a payment bank, Paytm will be able to accept deposit up to rupees 1 lakh per customer in wallet and saving current account. Further, it can also offer other services like debit card, online banking, and mobile banking. It will not be allowed to lend to customer. However, it will be able to offer financial product like loan, insurance, mutual fund, pension fund, etc. By partnering with the other financial institution and banks. So, what exactly the Paytm have done? So even I was not aware कि literally Paytm मतलब 1 लाख का भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है करके. पेटीएम आई यूज टू थिंक फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब परचेसिंग, इसके लिए मैं अज्यूम करती थी. लेकिन वो लोग 1 लाख का भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं. इट्स अ गुड थिंग, मतलब वहाँ पे हम लोग बड़ा ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं थ्रू द पेटीएम. ओके. सो यस, आई थिंक जो लोगों ने यूज़ मतलब जो लोग गूगल पे यूज़ करते रहेंगे, इवन दे मस्ट बी गेटिंग एन आइडिया कि पेटीएम कैसे काम करता रहेगा. एम आई राइट निकी? पता है ना Yes, ma'am. तुमको? हाँ. सो दिस इज लाइक majority of you are maybe familiar with the Paytm working. Now the next one here, RBI to reconstitute oversight committee to tackle bad loans. Okay, can you just tell me bad loans मतलब इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट. किसी भी बैंक में अगर बैड लोन्स रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग. बैड लोन्स का मीनिंग क्या है आपके हिसाब से. व्हाट डू मीन बाय द बैड लोन्स. यस, क्या लगता है आप लोगों को. बैंक के लिए तो किसी भी बैंक के लिए तो लोन्स तो अच्छा ही रहता है ना, बिकॉज थ्रू व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग लोन टू द पब्लिक, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट द हायर रिटर्न ऑन दैट. अगर हम लोग 20 लाख का लोन लेते हैं तो हम लोग लिटरली पेमेंट करते करते बैंक को 40 लाख दे देते हैं. एम आई राइट और नॉट स्टूडेंट. इतना वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लगाते हैं. यस और नो. Yes, ma'am. आपके Yes. घर में अगर किसी ने होम लोन लिया रहेगा, सो ये पीपल मस्ट बी हैविंग अ वेरी क्लैरिटी कि होम लोन के लिए आपने 20 लाख लिया रहेगा, भले वो 20 साल के लिए रहेगा, लेकिन 20 साल के बाद अगर आप कैलकुलेशन करोगे, सो इन प्लेस ऑफ 20 लाख दे आर एक्चुअली टेकन योर 40 लैक्स. ऐसा उनका वहाँ पे मतलब दे आर लिटरली अर्निंग द 100% प्रॉफिट दैट वी कैन से. ठीक है, उसके ऊपर. तो फिर ये बैड लोन्स कैसे हो सकता है किसी भी बैंक के लिए. मैम, जैसे कि वो लोन दिया हुआ है बट उनको गारंटी नहीं कि वो रिटर्न होगा. क्या क्या नहीं, फिर से एक बार बोलो निकी, फिर से एक बार. मैम, जैसे कि उन्होंने लोन दिया हुआ है बैंक ने, बट हाँ ऐसा है कि उन्हें कंफर्म नहीं है कि पूरा अमाउंट वापस आएगा, हाँ, वेरी गुड. रिटर्न होगा. कंफर्म, कंफर्म नहीं है मतलब दैट वी कैन से कंफर्म नहीं है. बैड लोन कब कहा जाता है कि जब वो अमाउंट आता ही नहीं है, दैट टाइम इट विल बी कंसिडर बैड लोन. कंफर्म नहीं है, अगर उनको कंफर्म नहीं रहता है ना तो वो लोग लोन देंगे ही नहीं वैसे पर्सन को.
वो एक बात भी रहती है, बिकॉज दे आर टेकिंग समथिंग एज अ गारंटी, अगर नहीं दे पाए तो। और कैसे हाउसिंग लोन के ऊपर भले वो लोग लोन लेते, लेकिन फिर बाद में वो हाउस उनको अपने बैंक को अपने कस्टडी में लेना पड़ता है, उसको सेल करना पड़ता है। सो वहाँ पे भी पैसा रिकवर होना चाहिए, जितना अमाउंट वो लोग मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उतना मिलना चाहिए। दे शुड गेट दैट मच अमाउंट ऑल्सो फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। ओके, सो बैड लोन मतलब ये रहता है कि लोन दे दिया है लेकिन वो रिटर्न ही नहीं हो पा रहा है, रिटर्न ही नहीं कर रहे लोग, वैसा तब उसको कहा जाता है बैड लोन्स। ओके, सी व्हाट दे हैव गिवन हियर, दैट विल गोइंग टू रीड। The Reserve Bank of India is set to reconstitute oversight committee to operationalize the banking ordinance, which was recently cleared by the Union Cabinet to amend the Banking Regulation Act for the sake of giving more powers to Reserve Bank of India for effectively dealing with non-performing asset in the banking sector। यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने लिटरली आरबीआई ने एक ऐसा कमेटी बनाया हुआ है कि जो बेसिकली मतलब एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई को अथॉरिटी देता है, ज़्यादा पावर देता है कि कैसे इफेक्टिवली डील करना है ये बैड लोन के साथ, या वी कैन से द नॉन विद द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन द बैंकिंग सेक्टर। The existing oversight committee was constituted by the Indian Bank Association. The move is aimed at containing the bad loans which have reached to over rupees 8 लाख करोड़। अरे बाप रे, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि अभी जो ओवरसाइट कमेटी है कि जो बेसिकली ऐसे नॉन परफॉर्मिंग असेट के ऊपर ही काम करेंगी, तो वो किसने बनाई है? इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अभी जो ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ तक का नॉन परफॉर्मिंग असेट है, जो लोन है जो रिकवर नहीं हो पाया है, उसको कैसे अभी रिकवर करना है, ये उनका मेन टारगेट रहेगा। ओके, recently the Union Cabinet had authorized the RBI to issue direction to any banking company or banking companies to initiate insolvency resolution process under the provision of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The ordinance also empowered the RBI to act against loan defaulters and defaulting companies under the Bankruptcy Code. Amendment will enable RBI to set up multiple oversight committee to deal with the non-performing asset. So यूनियन कैबिनेट ने क्या किया, आरबीआई का तो अथॉराइज कर दिया, और उसके लिए आरबीआई को अथॉराइज ये कर दिया कि आप अपना डायरेक्शन बताओ बैंकिंग कंपनी के लिए कि कैसे उन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, एंड दैट वट एवर एक्शन यू विल बी टेकिंग ऑन दैट कंपनी और ऑन दैट the person who is being the defaulter in the repayment of loan, that would be under the provision of insolvency and bankruptcy code। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और इसके लिए गाइडलाइंस डायरेक्शन कौन इशू करेगा? दैट विल बी इशूड बाय द आरबीआई। ओके, then RBI is also working on a framework to facilitate consistent decision making in those cases which are referred for resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. RBI envisages a vital role for the credit rating agency and is exploring the feasibility of rating assignment being determined by the RBI itself. The agencies would be paid out of fund constituted out of contribution from the banks and the Reserve Bank. RBI envisages coordination among various stakeholders, including bank, ARC rating agency, IBBI, and PE firm. The Apex Banks has already sought information on the ये दिख नहीं रहा है स्टेटस ऑफ द राज असेट फ्रॉम द बैंक। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, डिसीजन मेकिंग के लिए दे ऑलरेडी मेड फ्रेमिंग, दे ऑलरेडी फ्रेम मतलब वर्किंग ऑन फ्रेमवर्क उन्होंने वहाँ पे ऑलरेडी किया है कि कैसे डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा। मतलब देखो, जो भी डिसीजन लिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग असेट के ऊपर, ये किस कोड के अंदर, ये किस एक्ट के अंदर से लिया जाता है। सो ये बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर से उनके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना पड़ेगा करके ऐसे लोगों के ऊपर या ऐसे बैंक के ऊपर। और वो जो भी रिजोल्यूशन रहेगा, जो भी वहाँ पे सोल्यूशन वो लोग लेके आते रहेंगे, सो दैट विल बी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, तो वहाँ पे इवन ऐसा भी है कि अगर कोई बैंक, जैसे देखो नॉन परफॉर्मिंग असेट अगर किसी बैंक का ज़्यादा हो जाता है, तो कोई एक बैंक उस बैंक को खरीद लेता है, मतलब अपने अंदर मर्ज कर लेता है। आर यू गेटिंग मी? सो वो कब करना है, किस पॉइंट पे वो डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे दे आर अलाउिंग द बैंक ऑल्सो, मतलब अगर एक बैंक पूरी तरह से डूबता जा रहा है तो दूसरा बैंक उसके सपोर्ट के लिए आएगा, और वो बैंक का जो भी वहाँ पे
कंट्रोल रहेगा, दैट विल बी टेकन बाय दैट बैंक हु हैव ऑलरेडी टेकन और वी कैन से टेक ओवर द बैंक हु इज इन द लॉस। तो वैसे वहाँ पे मर्ज करके भी सोल्यूशन लेके आ सकते हैं करके। तो आप बोलेंगे मैम फिर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन पे करेगा, ये सब कैसे फिर वो बैंक कर पाएगी? इफ दैट बैंक इज हैविंग दैट मच प्रॉफिट एंड इफ दे आर फीलिंग दैट दे आर हैविंग दैट मच कैलिबर to start with the to start recovering that non performing asset, then they can go ahead with this decision also. तो आरबीआई वैसे बैंक्स को भी परमिट करता है अगर वो वहाँ पे कोई सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं तो किसी बैंक के लिए। ओके, तो ये जो भी हम लोग अभी न्यूज़ देख रहे हैं ना कि ये बैंक इसके अंदर मर्ज हो गया, अभी रिसेंटली कुछ सिंडिकेट बैंक और इंडियन बैंक का कुछ तो मर्जिंग हुआ है लगता है, ऐसा कुछ मतलब ऐसे दो बैंक का मर्ज हुआ है। तो ये सब ऐसे अपनी मर्जी से मर्ज नहीं होते, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहता है करके दे नीड टू गेट इनटू द मर्जिंग पोजीशन। तो वैसे इसके लिए वो अमालगमेशन होता रहता है वहाँ पे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर, हेड ऑफ 7 पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स अपॉइंटेड। ओके, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस दैट वी विल सी इन अ मेजर, दिस वाज द फर्स्ट सेकंड, दिस इज पेज नंबर 19 17 18। Okay, हाँ, head of 7 public sector units bank appointed in a major restructuring in banking sector, appointments committee of the cabinet head by the Prime Minister Narendra Modi appointed head of several 7 public sector banks besides shifting managing direction of PNB, that is Punjab National Bank and Bank of India। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो 7 पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक है उनके उन्होंने हेड्स को अपॉइंट किया हुआ है। सो ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी कैबिनेट के अंदर है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये 7 हेड्स को वहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सो उन्होंने क्या किया वहाँ पे, वन मोर थिंग, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर थे पीएनबी के और बैंक ऑफ इंडिया के, तो उनको उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, बस वहाँ पे हेड किसी और को रख दिया। सो दैट वाज द पॉइंट हियर। PNB Managing Director Usha Ananta Subramanian has been appointed and as the head of Kolkata based Allahabad Bank। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब हम लोग देखें कि कौन से 7 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए उन्होंने हेड अपॉइंट किया। सो वन इज द पीएनबी, और पीएनबी कौन सा वाला है, कलकत्ता बेस्ड इलाहाबाद बैंक का, एंड देन सिंडिकेट बैंक का है, उसके बाद में कौन है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उसके बाद में ओवरसीज बैंक का उन्होंने बनाया है, अगेन हु इज दैट, अच्छा सुनील मेहता को अभी एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पीएनबी के लिए तो हाँ उषा अनंत सुब्रमण्यन को रखा था, लेकिन अभी उन्होंने करंटली सुनील मेहता को रखा है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है, एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक, अच्छा कैनरा बैंक को भी उन्होंने दिया हुआ है, एंड देन द बैंक ऑफ इंडिया विल बी एमडी एंड द सीईओ ऑफ विजया बैंक। ओके, बैंक ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे आपको बस ये ध्यान में देना है कि कौन से 7 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की यहाँ पे उन्होंने हेड्स को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया उन्होंने, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक इन टैकलिंग द मेनटेनेंस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट इज सेड टू बी द पर्सन बिहाइंड द मेजर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। Bad loans of public sector banks surged by over rupees 1 lakh crore to reach to rupees 6.6 lakh crore during April-December 2016-17। The bulk of their non-performing assets have emitted from the power steel road infrastructure। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि नॉन परफॉर्मिंग असेट अभी इतना बढ़ गया है पब्लिक सेक्टर बैंक में कि जो पहले 1 लाख करोड़ तक का था अभी वो लिटरली 6 लाख करोड़ तक का हो चुका है 2016-17 तक। और जो भी नॉन परफॉर्मिंग असेट है ना वो जनरली मतलब ये अपना जो मतलब ये पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल सेक्टर, वहाँ से कुछ ज़्यादा ही बता रहा है। Okay, now next one here, RBI tightens rule of JLF। Now what is JLF? Joint Lender Forum। Okay, so we'll see here what exactly it is. Here is the Reserve Bank of India has tightened the rules around the making the Joint Lender Forum more effective, directing banks not to break any rules and to meet all deadlines। The RBI has said that any breach of rules would attract a monetary penalty। ओके, उन्होंने यहाँ पे जो भी जॉइंट लैंडर फोरम के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने रूल्स वहाँ पे बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मिस्टेक कर रहा है, मतलब कोई अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है
Shital, we can view your house, Shital. ओके, ठीक है। तो व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग हियर कि जैसे जॉइंट लेंडर फोरम के अकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने क्या किया है कि अगर कोई भी बैंक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज मेजोरिटी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आर कमिंग एंड इट विल बी काइंड ऑफ अ लॉस टू द बैंकिंग सेक्टर, तो वैसा नहीं होना चाहिए करके दे सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड इफ समबडी विल नॉट गोइंग टू फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसके लिए मॉनेटरी पेनल्टी लगाया जाएगा, and that will be through the joint lender forum. Okay, as per the new norms, RBI has lowered the threshold needed for implementing the corrective action plan. Now the decision agreed to buy a minimum of 60% of creditors by value, and 50% of creditor would now be valid to implement the CAP, that's the corrective action plan. Once a decision is reached by the JLF, that is joint lender forum, it would be binding on all other lenders and they must implement it without any additional conditionality. However, if a lender wants to exit by exercising the substitution option but fail to exit within the given time, it has to go along with the decision taken. The CAP can include resolution through the, see, if you're going to see majority of this point, they are totally focusing on the non-performing asset only. कि नॉन परफॉर्मिंग असेट को कैसे चेंज करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, मतलब वो कैसे नहीं होना चाहिए करके, बैड लोन को कैसे कवर अप करना है, वहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट इसी के ऊपर टारगेटेड है कि जो भी वो लोग स्कीम बना रहे हैं, तो दैट स्कीम शुड बी इन सच अ वे दैट नॉन परफॉर्मिंग असेट शुड गेट रिड्यूस हियर। और अभी का फिलहाल ये बहुत बड़ा इश्यूज है बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगेन इफ यू गोइंग टू से द नेक्स्ट वन ईयर, आरबीआई इशू रिवाइज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो अभी फिर से उन्होंने कुछ नया स्ट्रेटेजी लिया है वहाँ पे कि नॉन परफॉर्मिंग असेट अगर आता है तो कैसे उसके लिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा। तो हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं उन्होंने क्या यहाँ पे बताया है। द रिवाइज फ्रेमवर्क वुड अप्लाई टू ऑल बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग स्मॉल एंड फॉरेन बैंक। अच्छा, मतलब यहाँ पे बैंक्स इंडिया के ही बैंक्स हो गए तो उनके ऊपर आरबीआई कंट्रोल करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। इवन दे आर सेइंग कि अगर कोई फॉरेन बैंक भी रहेगा और वो इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया में उसका ब्रांच है, एंड इफ दे फाउंड कि नहीं वो बराबर से नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग असेट के ऊपर कंट्रोल रख पा रहा है, तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा। द न्यू सेट ऑफ प्रोविजन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम April 1 based on financial of banks as of March 2017. The revised framework will override the existing PCA framework, ओके, आफ्टर 3 ईयर्स। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये हमेशा 3 साल के बाद में चेंज होता रहेगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट कितना सीवियर है, कितना प्रॉब्लमेटिक है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग हमेशा 3 साल के बाद रूल्स और रेगुलेशन चेंज करते रहेंगे उनका वाला। ओके, okay, here also we'll take the same point. We'll take the next one here. Pradhan Mantri Yojana crosses loan targets. Okay, ओके, दिस इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये सब अभी जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट किया गया था उसी टाइम पे ये सब सारे स्कीम्स को भी स्टार्ट किया गया था। सिविल सी ईयर व्हाट इज देयर इन द अंडर द प्रधानमंत्री योजना। See, loans disbursed under the Pradhan Mantri Mudra Yojana have crossed its targets of rupees 1.8 lakh crore in the financial year 2016-17. Loan extended currently stand at around 1.80,087 crore. Of this, a majority of the loans were awarded by banks, that is around rupees 1.23 lakh crore. Non-banking financial institutions have lent up about 57,000 crore. In this year budget, rupees 2.44 lakh crore has been set as a target of Mudra loans for the financial year 2017-18. सी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लमेटिक है, मतलब जो मुझे लग रहा है कि यस ऑब्वियसली इट इज गुड, लाइक थ्रू द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मेनी पीपल आर एबल टू गेट द लोन फैसिलिटी, ठीक है। लेकिन उनका टारगेट था 1.8 लाख करोड़ का, लेकिन उन्होंने उससे भी ज़्यादा लोन्स लोगों को प्रोवाइड किए। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, दो थ्रू दिस पॉलिसी लोन्स इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द पब्लिक, लेकिन वो पब्लिक उसको रिटर्न करेगी या नहीं करेंगी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं करेंगे, अगेन द नॉन परफॉर्मिंग असेट विल गोइंग टू हैपन, तो वैसा नहीं होना चाहिए करके हम लोग बोलने के लिए बोल सकते कि द स्कीम इज गुड, लाइक मैक्सिमम पीपल हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ इट, लेकिन वो एडवांटेज ले लिया है, लेकिन लोन को रीपे भी करना आना चाहिए। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है ये योजना के, दैट विल सी।
Significantly, out of the 4 crore borrower, over 70% of the borrowers were women. Around 20% of the borrower belong to scheduled caste category, 5% belong to scheduled tribe category, and 35% belongs to other backward classes. Robust growth in bank loans to unfunded and underefunded segments of the society indicate that this category of borrowers has emerged as a key driver of demand for a credit. Non-insistence of collateral guarantors, simple documentation, and the quick processing are the three praiseworthy attributes of the मुद्रा लोन्स. मतलब यहाँ पे बहुत इजीली मिला लोन्स लोगों को. इसके लिए जो गरीब बेसिकली मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों ने नोट किया रहेगा, उन्होंने कहा है कि 70% जो भी वो लोन के बोरोवर्स से दे आर ऑल वुमेन्स ओनली. ठीक है. और जो 20% उनके बोरोवर्स थे वो बैकवर्ड कैटेगरी के थे. सो दैट इज इंडिकेटिंग कि ये लोगों को ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत है और वो लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा क्रेडिट लिया हुआ है थ्रू दिस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. और ये क्यों हो पाया? बिकॉज देर वॉज नॉट मच फॉर्मेलिटी सपोज टू डू. इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं था, ज़्यादा हार्ड मतलब और प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं था, सिंपल प्रोसेस रखा था करके people were able to take a loan from this kind of a scheme here. लेकिन फिर से टारगेट है अभी गवर्नमेंट के पास में कि वो पैसा आना चाहिए. नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू लॉन्च अ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी bank to support the entrepreneurs of scheduled caste, scheduled tribe, and other backward class entrepreneurs in the MSME. The scheme was launched on 8 April 2015. Mudra cards are the unique feature of this scheme. The card permit access to working capital through ATMs and the card machine. Mudra loans can be availed for non-agricultural activities up to rupees 10 lakh and for activities allied to agriculture such as dairy, poultry and then beekeeping, etc. The scheme provides loan to micro units in three categories ranging from rupees 50,000 to rupees 50. Then again, how much it is? Okay, then rupees 10 lakh ऐसा है. Then loan up to शिशु के लिए लोन अप टू 50,000. किशोर लोन है, लोन रेंजिंग फ्रॉम 50,000 to rupees 5 lakh. And तरुण लोन इज अराउंड लोन रेंजिंग फ्रॉम 5 lakh to 10 lakh here. यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली द शिशु मीन्स आई रियली मतलब शिशु जितना मुझे समझ रहा है कि छोटे बच्चों का है. किशोर मतलब लाइक द टीनेजर ग्रुप वी कैन से. तरुण मतलब जो यंगर है लाइक अबव 18. तो वैसा वाले मतलब उन्होंने आई थिंक वो स्कीम को नाम दिया रहेगा मे बी. 3 कैटेगरीज में उन्होंने दे दिया है कि मतलब 50,000 इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन, उससे थोड़ा ज़्यादा है सो 50,000 टू रुपीज़ 5 लाख. एंड थोड़ा बड़ा अमाउंट है दैट इज कॉल्ड तरुण, सो दैट इज 5 लाख टू रुपीज़ 10 लाख ईयर. और यहाँ पे जो भी लोन दिया जाता है दैट इज इट कैन बी अवेल फॉर द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. उसके लिए लिया जाता है. मतलब अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए यू कैन डिमांड द लोन अप टू 10 लाख का उसके तरफ से. एंड देन वन मोर थिंग कि अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है लेकिन जैसे कि वो अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है जैसे कि डेयरी है, देन अगेन पोल्ट्री फार्मिंग है, बी कीपिंग वगैरह है, तो उनके लिए भी लोन दिया जाएगा. ओके, सो इट्स ए गुड थिंग ना स्टूडेंट. व्हाट यू से? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अगर इवन आप लोग भी टीवाई के बाद कुछ प्लान करोगे बिजनेस करने का, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ लोन थ्रू दिस स्कीम. करोगे या नहीं? बिजनेस के लिए प्लानिंग है या नहीं दिमाग में किसी के? यस? नहीं, किसी को नहीं करना. ओनली विकास इज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस. बाकी गर्ल्स वगैरह यू आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज. प्लान करके रखो. देखो प्लान ए रखना है, प्लान बी रखना है, प्लान सी रखना है अपने करियर के लिए. प्लान ए विल बी लाइक you want to get into the banking sector, a job that could be of government job only. सेकेंड प्लान भी रखो कि अगर नहीं हुआ वो वाला तो फिर मुझे इसमें जाना है. मतलब यू कैन प्लान फॉर द यूपीएससी एंड एमपीएससी. अगर मुझे बैंकिंग में नहीं मिला तो यूपीएससी एमपीएससी के थ्रू मुझे किसी और प्रोफाइल में जाना चाहिए. अगर मुझे वो भी नहीं मिला तो मेरे पास प्लान सी होना चाहिए कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँगा करके. यस आई गॉट. अच्छा वेरी गुड विवेक, इट्स अ गुड प्लानिंग. विवेक का प्लानिंग है कि हाँ होटल खोलना है. हाँ चलेगा विवेक. एंड टू हम लोग को इनवाइट करे या ना करे बट स्टिल वी वुड लाइक टू कम टू योर होटल
to enjoy your food. Okay. Okay. Mummy, What happened? bleaching powder. Arya, yes. अच्छा, उसके बाद में घर बनाना, वेरी नाइस। विवेक ने पूरा लाइफ का प्लानिंग करके रखा हुआ है। ऐसे तो सब लोगों ने प्लानिंग करना चाहिए, नॉट ओनली अ सिंगल पर्सन। ऐसे नहीं कि देखते अभी टीवाई के बाद क्या होगा करके, दैट शुड नॉट बी योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों को हमेशा प्लानिंग करना चाहिए कि आगे जाके तुम लोग क्या करने वाले हो।